Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Hello students, today we will discuss about preparation method of amine, that is Gabriel Thalamide synthesis. What is the meaning of Gabriel? Gabriel is the name of scientist and Thalamide is compound. This is the Thalamide because CONH group is present, CONH group known as amide, and the whole compound, that is aromatic compound, is called as Thalamide. So we'll discuss about Gabriel Thalamide synthesis कि Gabriel Thalamide synthesis से हम किस तरह से amine का formation करेंगे, आइए देखते हैं. Here acidic hydrogen is present, NH, acidic hydrogen is present. Hydrogen attached with nitrogen, it means it is in the form of H plus. Why? Because nitrogen is high electronegative element, so attract the electron of hydrogen. That's why partial negative charge arises on nitrogen. It means hydrogen becomes acidic in nature. In the very first step, this molecule treated with base, and we took the base, that is KOH. हमने लिया यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. बेस यहाँ से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? बेस विल गिव, इस KOH को ऐसे लिख दिया जाएगा, base provide OH minus ion, acid provide H plus, so OH minus react with H plus, give rise to formation of water molecule. So here elimination of water molecule takes place. Elimination of water molecule takes place. Then what happens? This K plus ion finally attached with N negative. Then what happens? Then the compound is formed. कंपाउंड के जिस पार्ट में कोई चेंज नहीं आया उसको उसी तरह से लिख देना है. C double bond O, C double bond O attaches with N, and now N is with K plus. So N minus and K plus, these are balanced right now, and the compound is CONK. Okay, students. Now this compound treated with alkyl halide molecule, RX molecule, then what happen? RX के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे. RX means alkyl halide, so here K plus react with X minus, due to which molecule of KX means molecule of salt released out, and the formation of compound takes place, which is C double bond O, C double bond O, and now it attaches with R. Okay, students. So this compound is formed. Alkyl group, that is R group, is attached with nitrogen. Okay. So it is alkyl thalamide. Alkyl पहले क्या था? ये पोटेशियम का सोल्ट बन गया था, पोटेशियम थैलेमाइड था, अभी एल्किल थैलेमाइड हो गया. नाउ द टाइम ऑफ हाइड्रोलाइसिस, अब इसका करवाएंगे हम हाइड्रोलाइसिस, और डिजायर्ड प्रोडक्ट इज एमीन. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. सबसे पहली स्टेप में हमने रिएक्शन करवाई, NH थैलेमाइड था, NH थैलेमाइड में से रिएक्शन करवाई बेस के साथ में, तो बेस का OH माइनस इसके H प्लस रिएक्शन करेगा, H2 यहां से एलिमिनेट हो जाएगा. सेकेंड स्टेप, potassium attached with nitrogen, now it is released in form of KX. If this compound treated with alkyl halide RX molecule, now this compound is formed. Here alkyl group finally attached with nitrogen atom of thalamide. Now what happened? Hydrolysis will be there. Hydrolysis means HOH in presence of basic media. Suppose we had some amount of NaOH, तो HOH हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इसका हम. तो फिर क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस मीन्स हियर वी कैन सी दैट cleavage of single bond will occur. Cleavage of single bond.
And we know that if hydrolysis of single bond is performed, then water dissociate in H plus and OH minus ions. वाटर H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा, सिंगल बॉन्ड यहां से क्लीव होने वाला हाइड्रोलाइसिस वाटर की प्रेजेंस में. सो OH माइनस गोज टू कार्बन. व्हाई? बिकॉज इट इज द नेगेटिव चार्ज स्पीसीज and negative charge species attached to the carbon, and this carbon is positively charged. Why? Because it attached with the high electronegative atoms. In one side oxygen, another side nitrogen. ऐसा ही इस कार्बन के साथ हो रहा है, दोनों ही कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो OH माइनस यहाँ पे दो H2 के मोलिक्यूल होंगे, दूसरा OH माइनस कौन ले लेगा? ये वाला C. ओके, now H plus ion goes to high electronegative atom, that is nitrogen. The charge of nitrogen is negative because of its high electronegativity. Then what happen? What is the product of this reaction? ध्यान से देखना है. R bonded with N, and then two bonds are there, and these two bonds are attached with two hydrogen atoms. So the formation of RNH2 takes place. Formation of RNH2 takes place. It is known as 1 degree amine. And what about side product? क्या होगा यहाँ पे side product का? आइए देखते हैं क्या हुआ. Side product is this. This is the benzene ring, C double bond O and C double bond O. Now what is with OH and OH? OH माइनस यहाँ भी कार्बन पॉजिटिव पे आएगा, OH माइनस कार्बन पॉजिटिव इस पे भी आएगा. सो OH and OH, this compound is known as phthalic acid. This is known as phthalic acid, carboxylic acid, having COH on the adjacent position, looking like thala, known as phthalic acid. Okay, students, it is known as phthalic acid. Phthalic acid is the side product of this reaction. Here main product is primary amine, 1 degree amine. हम पढ़ रहे हैं amine का synthesis, गैब्रियल थैलेमाइड synthesis reaction, और इसमें किस तरह से amine का formation होता है हमने देखा. इस कंपाउंड में एक बार ध्यान से देखना. Here hydrolysis takes place in the presence of base. यहाँ पे बेस की प्रेजेंस होती है, और यहाँ पे बेस हमने नहीं भी लिया होता तो स्टार्टिंग में आपने KOH लिया है तो वो भी बेसिक मीडिया है, लेकिन यहाँ हाइड्रोलाइसिस भी बेसिक मीडिया में हो रहा है. यदि हम सिर्फ यहाँ पे KOH ही लें, ओनली KOH लिया जाए पूरी रिएक्शन में, तो भी क्या ये थैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा? नो, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ बेस एसिड रिएक्ट विद दैट बेस, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. तो यदि रिएक्शन मिक्सर में KOH पड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहां से ये KOH इसके पास में लिख दिया हमने. यदि KOH पड़ा हुआ तो यहां से H2 निकल जाएगा, क्योंकि एसिड H दे रहा है, बेस OH दे रहा है, और दो H2 के मोलिक्यूल के निकलने से ऑक्सीजन के साथ में कौन अटैच हो गया? पोटेशियम आयन यहां पे अटैच हो जाएगा. नाउ द कंपाउंड इज फॉर्म पोटेशियम थैलेट. यहां सोल्ट बनेगा एंड कंपाउंड इज पोटेशियम थैलेट. ओके स्टूडेंट्स, मतलब एसिड एसिड की फॉर्म में नहीं रहेगा जब रिएक्शन में बेस काम में लिया जाए. एंड इफ वी यूज NaOH, यदि हमने यहाँ पे NaOH काम में लिया, देन व्हाट हैपन? देन ये जो थैलिक एसिड है, एसिड रिएक्शन करेगा बेस के साथ में डेफिनेटली NaOH. रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस. Here also water molecule eliminated. Now sodium ion attached with this oxygen, and the compound is known as sodium thalate. Okay students, तो यहाँ पे याद रखना है कि थैलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडिया में होगा तो बेस उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो ये थी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन. इस रिएक्शन से किस तरह से हम एमीन का, एल्किल एमीन दैट इज 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं हमने देखा. नाउ वन क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CBSE एग्जाम, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और क्या है वो क्वेश्चन?
we cannot synthesize the aromatic amine from this reaction. हम यहाँ से एरोमेटिक एमीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों है? आइए चेक करते हैं। एरोमेटिक एमीन का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे ये वाली एमीन बननी चाहिए, एनिलीन यहाँ पे बननी चाहिए। दिस इज द मोलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक एमीन, इट शुड फॉर्म इन दिस रिएक्शन। ये कंपाउंड जो है यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन एरोमेटिक एमीन यहाँ पे नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? ये वाली एमीन इस मेथड से नहीं बनेगी। रिमेंबर इट, व्हाई? बिकॉज NH2 के साथ में ये वाला ग्रुप लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलिफेटिक जो एल्किल हैलाइड लिया है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एरोमेटिक, यहाँ जो RX लिया है वहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा, वहां पे लेना पड़ेगा आपको ARX, एरोमेटिक एल्किल हैलाइड, मतलब एरिल हैलाइड यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। एरोमेटिक हैलाइड मींस एरिल हैलाइड, एंड we know very well that alkyl halide does not undergo nucleophilic substitution reaction. Aryl halide does not undergo nucleophilic substitution reaction. हमेशा याद रखना है, हेलोएरिन्स do not undergo nucleophilic substitution reaction. इसके 4 रीजन हैं। कौन कौन से रीजन? sp2 hybridized carbon atom, second partial double bond character, instability of phenylcation and possible repulsion। ऐसे जो रीजन हमने लास्ट चैप्टर दैट इज 10th चैप्टर में पढ़े थे। तो यदि हमने ऐसा कंपाउंड लिया तो ऐसे नहीं कि K और X को ऐसे निकाल दिया, ऐसे नहीं होता है। नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और न्यूक्लियोफाइल के साथ में ये एरिल हैलाइड है, वो रिएक्शन नहीं देते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, तो फिर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। इसका मतलब गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हम एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते। कौन सी बना सकते हैं? एल्किल एमीन, दैट इज एलिफेटिक एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एलिफेटिक एमीन का क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे क्या काम में लेते हैं, RX मोलिक्यूल, एंड वी नो वेरी वेल दैट nucleophilic substitution reactions are the characteristic reaction of alkyl halides. तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन ने जैसे R पे अटैक किया X माइनस के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ से K प्लस, टोटल यहाँ से KX निकल जाएगा, आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगी और इस तरह से 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। थैलेमाइड नाम के कंपाउंड से हम इस तरह से 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।